there are some things which you don't know and which you have not practiced. But there are something which is written in the Bible. It is practiced by the people of God. It is practiced by the church. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी की नहीं है, आपका अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें बाइबल में लिखी गई है और परमेश्वर के लोगों ने उसको इस्तेमाल किया हुआ So है। it is your responsibility and my responsibility who believe in God and who believe in the word of God, who believe in the Bible. It is our responsibility to obey the word of God and learn to practice what the word of God declares us. और ये तुम्हारे और मेरी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो हम सीखें और उस हिसाब से हम चले। So now when we were praying in tongues, when we were praying in the Holy Spirit, that is the time the Spirit of God very clearly told me, by your prayers, by your faith confession, something you are interceding beyond your understanding. और जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तभी मुझे परमेश्वर ने दिखलाया तुम्हारे समझ के परे तुम कुछ प्रार्थना कर रहे थे। There is, it says in the Bible like this. बाइबल में ऐसे कहा गया है। In the 1 Corinthians chapter 14 verse 14. पहला कोरिन्थियों 14:14 में ऐसे लिखा है। Paul was writing to the church and telling about the. पौलुस कलीसिया को लिख के बता रहा था। He was telling about the prayer with the Spirit and prayer with the understanding. और वो उस प्रार्थना की उनको लिख के कह रहा था कि जो समझ से जो प्रार्थना होती है और आत्मा से जो प्रार्थना होती है उस बारे So में। he was telling to the church और वो कलीसिया को बता रहा था about the experience what as a child of God, परमेश्वर के बच्चे के तौर पे क्या उसका अनुभव था, as anointed by God, परमेश्वर के अभिषेक के तौर पे as in selected by God, परमेश्वर ने जैसे नियुक्त किया है, as चुना in है, appointed by God. परमेश्वर ने जैसे नियुक्त किया है, He is sharing his experience to the church. वो अपना अनुभव कलीसिया के साथ बांट रहा है। And he is telling to the church और वो कलीसिया को कह रहा है who don't know these two levels of prayer in their personal life. ये प्रार्थना के जो दो स्तर है वो उनके निजी जीवन में जो जानते नहीं थे उनको कह रहा है। They know only the natural prayer, they don't know the supernatural prayer. वो सिर्फ नैसर्गिक प्रार्थना को जानते थे, वो अलौकिक प्रार्थना को नहीं जानते थे। They know the prayer which comes with the mind, but they don't know the prayer which comes with the Holy Spirit, which is within you. जो मन से प्रार्थना आती है वो जानते थे, लेकिन जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना आती थी वो नहीं जानते, जो तुम्हारे अंदर से आती थी। One greatness of the Holy Spirit we all should understand. पवित्र आत्मा का एक महानता हम सब समझे। Holy Spirit descended. जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा, When Jesus was born, he has selected a place, Bethlehem. जब यीशु जन्मा तब उसने एक जगह चुनी थी उसके जन्म के लिए, वो बेथलेहम थी। When God led his people, he has chosen Mount Sinai. और जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मार्गदर्शन किया तभी वो सिनाई का पर्वत उसने चुना था। When Holy Spirit descended, जब पवित्र आत्मा नीचे the उतरा, third personality of the Trinity of God. परमेश्वर के त्रैक का तीसरा व्यक्तिमत्व, Which place does he choose? उसने कौन सी जगह को चुना? He chose the hearts of the people. उसने लोगों के हृदय को चुना। He said like this, I will descend upon the people. और उसने ऐसे कहा कि मैं लोगों के ऊपर उतर जाऊंगा। Not on a holy place, सिर्फ पवित्र जगह पे not नहीं, on a holy mountain, पवित्र पर्वत पे not नहीं, on a holy city, पवित्र शहर पे नहीं, not on a holy things. पवित्र जगहों पे नहीं। I decide to dwell among the people. और मैंने निर्णय लिया है कि मैं लोगों में राज करूंगा, उनमें रहूंगा। Amen. Amen. God decided to live in you. परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो तुम्हारे अंदर रहेगा। He made everything easy for you. उसने सब कुछ तुम्हारे लिए आसान कर दिया। He made it everything easy for us. उसने सब कुछ हमारे लिए आसान He कर said, दिया। you don't need to journey, I will journey for you. उसने कहा कि तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सफर You करूंगा। don't need to choose a place for me. मेरे लिए तुम्हें जगह चुनने की जरूरत I नहीं है, have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। I want to be in you. मैं तुम्हारे अंदर रहना I चाहता want to give a spiritual experience to you. मैं तुम्हें आत्मिक अनुभव देना Now चाहता हूँ। Paul is telling like अब this, पौलुस ऐसे कह रहा है, I know the prayer which comes with the mind, और मैं ऐसे प्रार्थना को जानता हूँ जो मन से आती है, but you do not know लेकिन तुम नहीं there is जानते। one more prayer और एक प्रार्थना है which comes by the Holy Spirit within you. जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है उससे वो आती है। The Spirit of God is upon everyone
who believe in God. परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। Do you believe in God? क्या तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? Then the Holy Spirit is in you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर And है। now Paul is telling, अभी पौलुस कह रहा so है this is what he is telling. और वो ये कह रहा है, I know when I'm praying in tongues, मैं जानता हूँ जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता my हूँ, mind does not pray, मेरा मन प्रार्थना नहीं but my करता, spirit prays. लेकिन मेरा आत्मा प्रार्थना Can करता I है। hear amen for that? क्या मैं उसके लिए आमेन सुन सकता Can I हूँ? hear amen for that? क्या आमेन कह Do you सकते believe हैं? that? क्या तुम्हारा Today विश्वास that है? is what happened. और आज वही When हुआ। you are praying in tongues, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना it कर is रहे not थे, your mind prayed. ये तुम्हारा मन नहीं It प्रार्थना is कर not रहा your था, understanding prayed. तुम्हारी समझ नहीं प्रार्थना It's कर not रही the थी, prayer what you know. जो तुम प्रार्थना जानते हो वो प्रार्थना It वो नहीं is थी, only the prayer which happened through the Holy Spirit. और ये वही प्रार्थना थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा की गई। So only the Holy Spirit knows. सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, Only Holy Spirit knows. सिर्फ पवित्र आत्मा जानता 1 है। Corinthians chapter 2 verse 10. पहला कोरिन्थियों 2:10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचती है। Only Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा, Come on, say only Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा, Only the Spirit of God. सिर्फ परमेश्वर का Come आत्मा, on, say only the Spirit of God. कहिए सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, Loudly, only the Spirit of God सिर्फ परमेश्वर का आत्मा who is within me. जो मेरे अंदर है। He only knows the deep things of God. परमेश्वर की गहराई की चीजें सिर्फ वही जानता है। Only Holy Spirit. सिर्फ पवित्र Come on, आत्मा, say only Holy Spirit सिर्फ पवित्र आत्मा who is there in me. जो मेरे अंदर है, He knows the deep things of God. वो परमेश्वर की गहराई की चीजों को जानता है। How much more you know the Holy Spirit. जितना ज्यादा तुम पवित्र आत्मा How को much जानते हो, more you care the Holy Spirit. जितना ज्यादा तुम पवित्र आत्मा का केयर करते हो, How much more you honor the Holy Spirit. जितना ज्यादा तुम पवित्र आत्मा का सम्मान करते हो, How much more you believe in Holy Spirit. जितना ज्यादा तुम पवित्र आत्मा पे विश्वास रखते How much more you trust in Holy हो, Spirit. जितना ज्यादा तुम पवित्र आत्मा पे भरोसा रखते That हो, much more you will know the deep things of God. उतनी ज्यादा तुम परमेश्वर की गहराई की चीजों को जानोगे, That much you will know the unsearchable things of God. और उतनी ज्यादा तुम परमेश्वर की गहराई की चीजों को जानोगे, So you such a deep things God will reveal to you. उतनी गहराई की चीजें परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा। While you were praying this evening, और इस शाम जब तुम प्रार्थना I कर रहे saw थे, the God working upon your families. मैंने देखा कि तुम्हारे परिवारों के ऊपर परमेश्वर काम कर रहा था। You may ask me how did you see that? और तुम मुझे पूछ सकते हो तुमने वो कैसे देखा। I believe in Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा I पे believe in विश्वास the work रखता of the हूँ। Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य पे मैं विश्वास I रखता हूँ। honor the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सम्मान Do मैं you? करता हूँ। क्या तुम? Do you honor the Holy Spirit? क्या तुम पवित्र I आत्मा का love the सम्मान Holy करते हो? मैं Spirit. पवित्र आत्मा को I आत्मा obey से the प्यार Holy करता हूँ। Spirit. मैं पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करता हूँ। He reveals the deep things of God. और परमेश्वर की गहराई की चीजें वो मुझे As you प्रकट were करता है। praying in tongues, जैसे तुम अन्य भाषा में प्रार्थना as कर you रहे are थे, praying in an unknown language, जैसे तुम न जानते हुए भाषा में प्रार्थना as कर you रहे are थे, praying in it, which is very different for you, जो जुबान में तुम प्रार्थना कर रहे थे वो तुम्हारे लिए बहुत ही अलग which थी, was sounding very different for जो you. तुम्हारे लिए बहुत ही अलग लग रही थी। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती but the है, word of God says, परमेश्वर का वचन but कहता the है, spiritual man says, आत्मिक व्यक्ति कहता the है, spirit-filled person says, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति the कहता है, person who believes in the Holy Spirit says, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पे विश्वास रखता है वो कहता you है, have uttered the secret things of God. परमेश्वर की उस रहस्य भरी बातें तुमने बड़बड़ाई है। And while you were praying, और जब तुम प्रार्थना कर रहे थे, you were speaking blessing upon your family. तुम्हारे परिवारों के ऊपर तुम आशीर्वादों की बात कर रहे थे। It's not with your goodness, it's not my goodness. ये तुम्हारी भलाई या मेरी भलाई It's से not नहीं with है, our gift or with not all of our what we do for God. ये हमारे उपहारों से या हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं उससे The नहीं Bible है। says like this, बाइबल ऐसे कहती है, what can you bring for me? तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो? The saint of God said like this. और परमेश्वर के संत ने ऐसे कहा, David said like this, दावीद ने ऐसे Lord, कहा, what can I bring for you? प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? If I bring a fruits for you, they belong to you. अगर मैं तुम्हारे लिए फल लेके आता हूँ तो वो फल तुम्हारे ही If I है। bring a sacrifice for, अगर तुम्हारे लिए मैं बलिदान लेके आता हूँ, I have not created that. मैंने वो तैयार नहीं किया है। What you have created, I am bringing to you. जो कुछ तुमने बनाया है वही मैं लेके आता हूँ। What can I bring to you? मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? Then he says like this, फिर उसके बाद वो ऐसे कहता है, I can bring my heart to you. मैं मेरा हृदय तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ। And this evening the Lord is telling, और इस शाम प्रभु कह रहा है, as you were confessing and praying, जैसे तुम कबूली देके प्रार्थना I कर रहे हो, saw the presence of God
entering into your family. मैंने देखा परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रही थी। Last week somebody was telling to me while I was talking, जब मैं बात कर रहा था आखिरी हफ्ते कोई मुझे बता रहा था, Pastor, we are praying so much. पास्टर हम लोग बहुत सी प्रार्थना कर रहे हैं, We are faithfully following the Lord. हम विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हैं, Always we are faithful in giving tithes to God. हमेशा हम लोग विश्वास के साथ दशमांश देते हैं परमेश्वर को। Oh, we are doing so many things. हम कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, But when our relatives see us, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार हमें they देखते हैं, always say to us like this, वो हमेशा हमें ऐसा कहते why हैं, you are not fruitful? तुम फलदायी क्यों नहीं हो, Why there is no blessing upon your तुम्हारे life? जीवन के ऊपर आशीर्वाद क्यों नहीं This is है। what our relatives says us. और हमारे रिश्तेदार हमसे ऐसे ही कहते हैं, But today, लेकिन आज there is an answer for you. तुम्हारे लिए उत्तर है। As you uttered and prayed, जैसे तुमने बड़बड़ा के प्रार्थना the की, presence of God has entered your house. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे घर में जा The चुकी Holy है। Spirit has entered in your house. पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में जा चुका The है। great God has entered in your house. वो महान परमेश्वर तुम्हारे The घर में God who प्रवेश किया turns है। all your impossibilities into possibilities, He has entered in your family. जो परमेश्वर तुम्हारे सारी असंभवताओं को संभवता में बदल देता है, वो He तुम्हारे घर में knows उसने प्रवेश how किया to है। transform your family. वो जानता है तुम्हारे परिवार को कैसे बदलना है। Let not the doubt enter in your mind, तुम्हारे मन में वो शंका ना प्रवेश करे, but always say like this, लेकिन हमेशा ऐसे कहे, I believe in the supernatural work of God. परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य पे मैं विश्वास रखता हूँ। That is what happened this evening while you are praying. और जब तुम इस शाम प्रार्थना कर रहे थे, यही हुआ। So when God enters, और जब परमेश्वर प्रवेश करता है, He enters with His goodness. वो उसके भलाई से प्रवेश करता है, He enters with His grace. उसके वो अनुग्रह से प्रवेश करता He है, enters with His blessings. उसके आशीर्वादों से वो प्रवेश He करता है। enters not to bring a curse upon वो you. तुम्हारे ऊपर श्राप लेके नहीं प्रवेश He करता है, enters to remove your curse in your life. तुम्हारे जीवन का वो श्राप निकालने के लिए वो प्रवेश करता है। He enters to bring all His goodness upon you. वो तुम्हारे जीवन के ऊपर सारी उसकी भलाई लेके आता है। He is a good God. वो अच्छा परमेश्वर है, He wants to do all goodness upon your life. सारी भलाई तुम्हारे जीवन के ऊपर वो करना चाहता है। Confess this one. ये इसका तुम कबूली दो। Have the faith on what the Holy Spirit is speaking to you today. जो कुछ पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है, उसके ऊपर तुम विश्वास That's the reason रखो। the Holy Spirit has given you such a wonderful experience this evening. इसलिए पवित्र आत्मा ने तुम्हें इस शाम एक इतना अच्छा अनुभव दिया है। He knows when you enter this place, you entered with all your worries, you entered with all your impossibilities, you entered with all your pain, you entered with all your troubles what you had. और वो जानता है कि जब तुम यहाँ पे आए, तुम्हारे सारे तकलीफों के साथ, तुम्हारे सारी चिंताओं के साथ, तुम्हारे सारे बोझ के साथ तुम यहाँ पे आए। When that is there, we will run to God. और जब कभी वो तुम्हारे जीवन में होता है, तब भी तुम परमेश्वर की ओर भागते हो। When everything is there, जब सब कुछ तुम्हारे पास होता we है, think that we are everything. हम सोचते हैं कि हम सब कुछ है। Sometimes some needs draw us near to God. कई बार कुछ जरूरतें हमें परमेश्वर की ओर खींच के लाती है। Sometimes the painful situation make us to search God. कई बार वो वेदना भरे समय हमें परमेश्वर को ढूंढने पे मजबूर Sometimes करते the हैं। failure will draw us near to God. कई बार हमारी वो नाकामी परमेश्वर के And पास this हमें evening लेके the Lord आती is telling, है। और इस शाम परमेश्वर हमें कह रहा है, because of your prayer, तुम्हारे प्रार्थनाओं की वजह से, because you prayed, क्योंकि तुमने प्रार्थना की, because you believed, क्योंकि तुमने विश्वास रखा, because you confessed, क्योंकि तुमने उसकी कबूली दी, because you uttered in spirit, क्योंकि तुमने आत्मा में बड़बड़ाया, my presence entered in your house. मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर में प्रवेश की है। Not because of Pastor Sam, पास्टर सैम की वजह से नहीं, because of God, परमेश्वर की वजह से, because of your prayer, तुम्हारे प्रार्थनाओं की वजह because से, of your faith, तुम्हारे विश्वास की वजह because से, of your confession. तुम्हारे कबूली की The वजह से Lord is telling, प्रभु कह रहा है, this is what the Holy Spirit is telling. पवित्र आत्मा ये कह रहा है, As God entered in your family, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे परिवार में प्रवेश किया now है, you start counted the goodness of God. अब परमेश्वर की भलाई को तुम गिनना शुरू करो। That's what Apostle Paul और says. पौलुस यही कहता That's what the है, experience today God gave us. और वही अनुभव परमेश्वर What ने is आज that हमें दिया। experience? वो अनुभव क्या था? As we read in 14:14 of 1 Corinthians, पहले कोरिन्थियों के 14:14 में जैसे it हमने was पढ़ा, not the prayer with the mind. वो मन से जो प्रार्थना की थी It वो was नहीं, not the prayer with understanding. जो समझ के साथ प्रार्थना की It थी is not उसके the prayer बारे which में is written नहीं, on the paper and you are repeated. जो पेपर के ऊपर प्रार्थना लिखी गई है और उसको आप बार बार कह It's रहे हो, not उसके the वजह से prayer what नहीं। you already pray all the time. जब हमेशा जो तुम प्रार्थना करते हो उसके वजह से नहीं, It is not your regular practice. ये तुम्हारी जो हमेशा की आदत है उसके वजह से But नहीं, it was the Spirit leading this evening. लेकिन ये पवित्र आत्मा ने तुमको आज इस शाम चलाया। We'll read that 14 and 15. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं
तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है Hmm. परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। So if anybody was trying to find out what we were speaking that moment, और उस क्षण हम क्या बात कर रहे थे, ये अगर कोई जानने की कोशिश कर रहा था, you cannot understand that with the mind. वो हमारे मन से हो हम समझ नहीं Very सकते। clean that the word of God is answering somebody. और परमेश्वर किसी को तो उत्तर दे रहा For है। some of you, it might have sounded as a funny thing. शायद तुम में से कई लोगों को वो एक फनी चीज लगी होगी। Might be it is the first time you are listening that sound. शायद ये पहली बार तुम उसको सुन रहे थे। Let me tell you, मैं तुमको your बताना mind चाहता हूँ, cannot understand that, तुम्हारा मन उसको समझ नहीं सकता, but your spirit can understand लेकिन तुम्हारा आत्मा समझ सकता है, because the Holy Spirit dwells in you. क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में रहता है। He didn't selected the mountain. उसने वो पर्वत को नहीं He चुना, didn't selected the holy city. उसने उस पवित्र शहर को नहीं चुना, He selected the people. उसने लोगों को चुना। Holy Spirit selected the people. पवित्र आत्मा ने लोगों को चुना। We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं, Holy Spirit dwells in us. पर पवित्र आत्मा हमें And that रहता Holy है। Spirit wants sometimes only to lead you to pray as He has in His mind. और वो पवित्र आत्मा तुम्हें कई बार चाहता है कि जैसे उसके मन में है वैसे वो तुम प्रार्थना करो। There were some times it happened, I had such experiences. और ऐसे भी कुछ समय थे जब मुझे ऐसे अनुभव हुए। So morning 6 o'clock started praying. सुबह 6 बजे मैंने प्रार्थना शुरुआत When की, I said Amen, और जब मैंने आमेन कहा, it was evening 6 o'clock. और शाम को 6 बजे That all थे, the time, और वो सारा समय only I was speaking in tongues. सिर्फ मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा That था। time, और उस समय there was a big change over the spiritual realm. और वो आत्मिक दायरे में बहुत सा ऐसा बदलाव Big हुआ, change over the ministry realm. और सेवकाई के दायरे में बहुत सा Big बदलाव हुआ, change over the church. चर्च के ऊपर बहुत सा बदलाव Big हुआ, change over the city. पूरे शहर के ऊपर बहुत सा बदलाव Oh, हुआ। when such experience happened, और जब ऐसे अनुभव हुए, I didn't felt any tired. मुझे कोई ऐसी थकावट I didn't महसूस नहीं felt that हुई। I prayed. मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैंने प्रार्थना की, Oh, just 12 hours just went like this. और 12 घंटे ऐसे ही निकल गए। But after that experience, लेकिन उस अनुभव के I बाद saw so many wonderful things happened upon my personal मैंने life. देखा कि मेरे जीवन के ऊपर कितने सारे अद्भुत चीजें होते हुए। As today God has given you this spiritual utterance, और जैसे परमेश्वर ने आज तुम्हें ये आत्मिक बड़बड़ाना दिया as है, you think spiritual realm, there is change upon the spiritual realm. और ये आत्मिक दायरे के ऊपर कुछ बदलाव हुआ है, Something supernatural happened upon you. कुछ अलौकिक तुम्हारे ऊपर हो It's चुका not है। because of your ये sacrifice. तुम्हारे बलिदान के वजह से It's नहीं not हुआ because you gave something to God. तुमने परमेश्वर को कुछ दिया It उस is वजह से because ये नहीं God है, decided to dwell in you. क्योंकि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो तुम में रहेगा। Nobody can reach God with something what we do. जो कुछ हम करते हैं उससे हम परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच सकते, That's why God decided, इसके लिए परमेश्वर ने निर्णय लिया, I will reach you. मैं तुम्हारे पास आता I'll हूं, reach with my spirit. मैं मेरे आत्मा से तुम्हारे पास That's आता what this evening the Lord done. हूं। और इस शाम परमेश्वर ने वही किया। What a good God we have. कितना अच्छा परमेश्वर हमारा है, What a great God we have. कितना महान परमेश्वर He है knows हमारा। we cannot move some things in our life. वो जानता है कि हमारे जीवन में कुछ हम बदल नहीं सकते, We cannot move something. Some things we can move, something it is difficult in our कुछ चीजें life. हम हिला सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए बहुत कठिन होती है Something we हमारे can जीवन change, में। but some things we cannot change. कुछ चीजें हम बदल सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते। Natural things we may change, but supernatural things we cannot change. नैसर्गिक चीजें हम बदल सकते हैं लेकिन अलौकिक चीजें हम नहीं बदल That's why सकते। God has done like this. इसके लिए परमेश्वर ने I ऐसे किया will है। give you this supernatural experience to you, मैं तुम्हें ये अलौकिक अनुभव so तुम्हारे that लिए you may दूंगा, see the supernatural things happening upon your ताकि life. तुम्हारे जीवन के ऊपर अलौकिक चीजें होते हुए तुम देख पाओ। And I see और मैं देख पा रहा हूँ with the spiritual eyes आत्मिक आंखों से, in Holy Spirit, पवित्र आत्मा में, by your prayers, तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा very soon, बहुत ही जल्द so many new things happening upon you and your family. तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर कितनी सारी नई चीजें होने When वाली that है। things happen, please remember me, और जब वो चीजें होती है तब कृपया मुझे याद करिए, because I reminding you that. क्योंकि मैं तुम्हें वो याद दिला रहा हूँ, Because God gave us that experience. क्योंकि परमेश्वर ने वो अनुभव हमें दिया। It is He decided today. और उसने ये निर्णय लिया, He said like this, my people gathered in my name. उसने ऐसे कहा कि मेरे लोग मेरे नाम में They इकट्ठा came हुए in हैं, fasting and वो prayer. उपवास करके प्रार्थना करने के They लिए आए gave हैं। their time for me. उन्होंने उनका समय मेरे लिए दिया। I don't want to waste their time. उनके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता है। Miracles you're going to see in your family. तुम्हारे परिवार में तुम चमत्कार देखने वाले हो। Last time I said, 8 number I have seen, I got the answer from many people. Many people came to me and told me about 8, और आखिरी समय मैंने 8 नंबर देखा था और कई लोगों ने उसका उत्तर आके दिया कि उन्होंने 8 नंबर के बारे में And today I बताया। have seen और आज मैंने देखा
God blessing the families. परमेश्वर परिवारों को आशीर्वाद कर रहा है। God working upon your children. परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के ऊपर काम कर रहा है। God working upon your situations. परमेश्वर तुम्हारे परिस्थितियों के ऊपर काम कर रहा है। He's removing your strugglings. वो तुम्हारे तकलीफों को दूर कर रहा है। He want to see that you are a blessed person. वो देखना चाहता है कि तुम एक आशीर्वादित व्यक्ति हो। See, in the blessings of God, परमेश्वर के आशीर्वादों में more than what we rejoice, God rejoice more. जितना ज्यादा हम आनंद मनाते हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर आनंद मनाता है। Do you know that? क्या तुम उसे जानते हो? When His people are blessed, more than what we rejoice, God rejoice. जब उसके लोगों को आशीर्वाद मिलता है जितना ज्यादा हम खुश होते हैं उससे कई गुना ज्यादा He want परमेश्वर to आनंदित see होता है। His people are blessed. और वो देखना चाहता है कि उसके लोग आशीर्वादित He बने। want to see His people are fruitful. वो देखना चाहता है कि उसके लोग फलदायी बने। Oh, you saw the plant at the side of the river. और नदी के बाजू में उन्होंने एक झाड़ को देखा। Blessed is the man who believe in God, who meditate on the word of God day and night. और जो आशीर्वादित व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखता है और उसका वचन दिन रात उसका अध्ययन He करता will है be planted at the side of the river. और नदी के बाजू में उसको बोया जाएगा He will prosper in whatever he does. और जो कुछ वो करता है उसमें उसको उन्नति मिलेगी The living waters are always provided for that क्योंकि person. जीवित पानी उस व्यक्ति को हमेशा दिया जाएगा। And next its reference talks about the ministry. और दूसरा जो रेफरेंस है वो सेवकाई के बारे में बात First करता है। reference talks about the personal life. पहला रेफरेंस निजी जीवन के बारे में बात करता Second है। reference talks about the ministry life. दूसरा रेफरेंस सेवकाई के बारे में बात करता And है। today the Lord is telling, और आज परमेश्वर कह I रहा है have come to bless you. मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको आशीर्वाद करने के। Do you believe that? क्या तुम्हारा Your विश्वास realm है? is changed. तुम्हारा आत्मिक दायरा बदल चुका है। Your spiritual realm is changed. तुम्हारा आत्मिक दायरा बदल चुका Oh, है। your family realm is तुम्हारे changed. परिवार का दायरा बदल चुका Oh, है। your children realm is तुम्हारे changed. बच्चों का दायरा बदल चुका है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है as I have stirred your spirit, जैसे तुम्हारे आत्मा को मैंने हिलाया है, as I revived your spirit, जैसे तुम्हारे आत्मा को मैंने उज्जीवन दिया my है, spirit started to do the things upon you. मेरे आत्मा ने तुम्हारे ऊपर काम करने शुरुआत किया है। And you will see now अब तुम देखोगे the things of God. परमेश्वर की चीजें। We are growing in faith. हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, We are growing in the word of God. हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। क्या तुम? We are going in the strength of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम We are बढ़ रहे growing हैं, spiritually. हम आत्मिक तौर पे बढ़ रहे हैं। When the spiritual growth comes, जब आत्मिक बढ़ोतरी आती है all things be added unto you. सारी चीजें तुम में डाल दी जाती है You will lack nothing. और तुम्हें कुछ भी And चीज this की कमी evening the नहीं Lord होगी। is telling और इस शाम परमेश्वर कह रहा है, Oh, this evening, especially God is telling, इस शाम परमेश्वर खास Whoever तौर पे कह present रहा है, here, जो कोई यहाँ पे you उपस्थित will है see the blessing of God. तुम परमेश्वर के आशीर्वादों को देखोगे।